میں ایک نوجوان شاعر کو اظہار خیال کے لیے پکار رہا ہوں کہ اس شعر کے ساتھ کہ میاں دیکھا نہیں جاتا کریں کیا دیکھ لیتے ہیں، یہ دنیا جو دکھاتی ہے تماشا دیکھ میاں دیکھا نہیں جاتا کریں کیا دیکھ لیتے ہیں، یہ دنیا جو دکھاتی ہے تماشا دیکھ لیتے ہیں، یہ دنیا جو دکھاتی ہے تماشا دیکھ لیتے ہیں، فقیران محبت ہر جگہ ٹھہرا نہیں کرتے، سکونت کرنے سے پہلے علاقہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بہترین ایک اچھے شاعر ایاز گورکھپوری سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آئیے جناب صدر، معزز شعراء اکرام، معزز مہمانان خصوصی اور حاضرین گرامی، یقیناً کسی بھی فنکار کے لیے وہ دن بہت بڑا اور یادگار ہوتا ہے جب اس کی برسوں کی محنت، اس کی تخلیقات ایک کتاب کی شکل میں منظر عام پر آتی ہے۔ میں ڈاکٹر لکشمن سوروپ شرما واحد صاحب کو دلی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو ایک اچھے شاعر ہونے کے ساتھ بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ اردو شاعری کی تقریباً 1000 سال کی تاریخ میں بے شمار ایسے شعراء گزرے ہیں جن کا تعلق حکمت سے رہا ہے۔ ڈاکٹر لکشمن شرما صاحب پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں اور تقریباً 10 سے 12 سالوں سے ممبئی جیسے تیز رفتار اور مصروف ترین شہر میں رہتے ہوئے غزل کی زلفیں سنوار رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یا یوں کہوں کہ کسی بنجر زمین پر پھول کھلانے جیسا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اظہار کے لیے غزل کا اسلوب چنا ہے۔ ان کے یہاں غزل کی تمام اوصاف موجود ہیں۔ یہ اپنے فن سے بہت اچھی طرح واقف بھی ہیں۔ حاضرین، گزشتہ 10-15 برسوں میں زمانے نے ایک نئی کروٹ لی ہے۔ تیز رفتار زندگی کے ساتھ شعراء کے سامنے نئے نئے چیلنجز کا سامنا رہا ہے، جس میں وہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا پھر معاشی اعتبار سے ہوں۔ اس کے علاوہ گلوبلائزیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا پھر انٹرنیٹ وغیرہ ہوں۔ جدید شاعری پر ان کے اثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں، لیکن ان سارے چیلنجز نے ڈاکٹر صاحب کے خیالات کو بلندی و وسعت عطا کی ہے، پختگی عطا کی ہے اور ایک اعتماد بخشا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری دل سے نکل کر دلوں پر اثر کرتی ہے اور زندگی سے براہ راست مکالمہ کرتی ہے اور اپنے اندر کھرے پن کا احساس دلاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ممبئی اور ممبئی سے باہر ہونے والے مشاعروں اور ادبی نشستیں اور محفلیں ان کی مقبولیت کا راز رہی ہیں، کیونکہ یہ سیدھے انداز میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں، بغیر کسی لفاظی کے۔ داد کی خاطر نہ کبھی انہوں نے داؤں پیش سیکھا اور نہ کبھی کوئی کرتب دکھایا ہے۔ کیونکہ یہ جانتے ہیں شاعری کی تہذیب روایت کیا ہے۔ حاضرین گرامی، یہاں سوال پیدا اٹھتا ہے کہ شاعری کیا ہے؟ ہر دور میں، ہر زمانے میں شعراء و ادبا نے اپنے طور پر اپنے انداز میں نظریات پیش کیے ہیں۔ بقول شاعر، نماز کا احترام لازم ہے، تو 10 منٹ کا تقریباً وقفہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر دوبارہ پروگرام کی شروعات کی جائے گی۔ شکریہ۔ جنرل پولیس بھی ہیں، ان کی باوقار آمد ابھی ہوئی ہے۔ ایک دستبستہ التماس ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں سے آپ سب ان کا استقبال کریں۔ جناب، پروگرام جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے درمیان جناب علیم شمسی صاحب، جناب کیسر خالد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ کیسر خالد صاحب برس سے فن شاعری میں زور آزمائی کر رہے ہیں اور نہایت ہی کامیاب شاعر ہیں۔ مشاعروں کے تعلق سے، ادب کے تعلق سے، علم کے تعلق سے نہایت ہی مشہور، اچھی شاعری کرنے والے۔ حالانکہ وہ سرکاری آفیسر ہیں اور سرکاری آفیسر سرکار کی بات رکھا کرتا ہے۔ ہمیشہ سرکاری آفیسر جو ہے اپنے دفتر کی بات رکھا کرتا ہے، لیکن کیسر بھائی کی خوبی یہ ہے کہ سماج کی بگڑتی ہوئی بے اطمینانی، ظلم
जबर, नाइंसाफ़ी, इस्तेमारियत के ख़िलाफ़ उनकी शायरी रहती है। जुल्म होने पर जालिम का गिरबान भी पकड़ती है। ये इनकी खूबी है। इनकी शायरी में को मैं बरसों से पढ़ता रहा हूँ, मैं सुनता रहा हूँ। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी अदना सी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। और इसके साथ मैं फिर दोबारा जहाँ से सिलसिला टूटा था, मैं अयाज गोरखपुरी से दरख्वास्त करता हूँ वो उसी सिलसिले को वहीं से शुरू करें जहाँ से उन्होंने मुनक़दा किया था। अयाज गोरखपुरी साहब। शुक्रिया सिकंदर भाई। मैं अर्ज़ कर रहा था कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के साथ शोरा के सामने नए नए चैलेंजेस का सामना रहा है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या फिर माशी एतबार से हो। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट वगैरह, जदीद शायरी पर इनके असरात नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। लेकिन इन सारे चैलेंजेस ने डॉक्टर साहब के ख़यालात को नई बुलंदी व वसत और उसके साथ पुख्तगी अता की है, एक एतमाद बख्शा है। और यही वजह रही है कि इनकी शायरी दिल से निकल कर दिलों पर असर करती है और ज़िंदगी से बराह रास्त मकालमा करती है और अपने अंदर खरेपन का एहसास दिलाती है। डॉक्टर साहब की शख्सियत का एक और पहलू ये भी है कि मुंबई और मुंबई से बाहर होने वाले मुशायरे और अदबी नशिस्तें और महफिलों में इनकी मकबूलियत का राज ये भी है कि वो सीधे सीधे अंदाज में अपने अशार, अपना कलाम पेश करते हैं। दाद की खातिर कभी इन्होंने दांव पेच या किसी करतब का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये जानते हैं शायरी की तहजीबी रवायत क्या है। हाज़रीन ग्रामी, यहाँ सवाल उठता है कि शायरी क्या है। हर दौर में, हर ज़माने में शोरा ने और अदबा ने अपने अपने तौर पर अपने अपने नज़रियात पेश किए। बकौल शायर, शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। वहीं अंग्रेज़ी के एक मशहूर शायर ने कहा था कि पोइट्री इज़ अ मेरिकल कंपोजिशन। और किसी का ख्याल था कि शायरी तन्हाई, खामोशी और सुकून में जज्बात के तस्करा करने का नाम है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दौर बदलता गया, वैसे वैसे नज़रियात भी बदलते गए। गौरतलब ये है कि हर दौर में बेशुमार नज़रियात पेश किए गए और आज भी पेश किए जा रहे हैं, मगर सब में मुश्तरका बात दिल की कैफियत और जज्बात है। मैं समझता हूँ शायरी एक मुश्किल फ़न है, बेहद नाजुक और कठिन, एक ऐसा अमल जिसमें फ़िक्र, सोच विचार, अंदेशा और वो क़ुव्वत जो ख़याली तस्वुर बनाकर सामने खड़ा कर दे, वो जादूगरी है जो कोमल एहसासात, नाजुक जज्बात, मोतबर ख़यालात, जमालियात की आयनादार हों। शायरी दरअसल अंदर के होने वाले हलचल और वारदात का नाम है जो बाहर आए बगैर नहीं रह सकती। ये किसी भी रंग में, किसी भी रूप में और किसी भी आहंग में जाहिर होकर ही रहती है। सागर भाई रहती है। यहाँ डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब के शेरी मजमूए लब्बैक का सरसरी मुताला करने के बाद मैंने पाया कि इनके अंदर होने वाली हलचल और वारदात के कई खुशनुमा रंगों के साथ बाहर आए हैं। और एक अच्छा फ़नकार अपनी शायरी के मौज़ूआत अपनी ज़िंदगी और माहौल से लेता है और अपने फ़िक्र ख़याल को एहसासात की भट्टी में से गुजार कर वो ज़िंदगी को दोबारा लौटा देता है। क्या बात है, मुलाहिज़ा करें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आशार अपने दर्द की भट्टी में डालकर बैठा हूँ घर का सारा असासा खंगाल कर। तस्कीने दिल के वास्ते क्या क्या नहीं किया, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। न तख्त व ताज की हसरत, न दौलत की ख्वाहिश, मैं एक दरवेश हूँ, खाना बदोशी चाहता हूँ। मेरी खुद तबीयत ने गवारा न किया, थे मेरे सामने सोने के निवाले कितने। डॉक्टर साहब के यहाँ फ़नी कमालात की कई तहों में छुपी एक तय है। इनमें सबसे खूबसूरत और पाकीज़ा तय है रुमानियत। जब बात रुमानियत की होती है तो मुझे फ़ानी का एक शेर याद आता है। फ़ानी कहते हैं, जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। डॉक्टर साहब के यहाँ भी इस तरह की रुमानियत नज़र आती है। मुलाहिज़ा करें कि इजाज़त तो दे दो खुदा के लिए, तलब बढ़ रही है मुलाकात की, बस एक बार मिलने का मौका तो दे दो।
झड़ी लगा दूंगा सौगात की। कौन जाने मेरे दिल में हैं छाले कितने, पी गया हंसते हुए जहर के प्याले कितने। मुझे फुर्सत से मिल जाओ किसी दिन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। गज़ल उर्दू शायरी की बेहद पसंदीदा और मकबूल सिन्फ रही है। इंसान के बातिन की दुनिया हो या खारिज की, समाजी हो या सियासी या माशी, जो भी मसाइल सामने आते हैं उन्हें माशरे में उन्हें गज़ल में पूरी क़ुव्वत है उन्हें पेश करने की। गज़ल में चूँकि तसलसल ख़यालात की शर्त नहीं, लिहाजा काफ़िये और रदीफ़ की पाबंदी के साथ बे वक्त बिला तकल्लुफ़ जो जी में आए मौजू बनाकर रंग बिरंगी फूलों की तरह उसकी लड़ी में पिरोए और समोए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अपने जज्बात का इजहार करने के साथ साथ हुब्बुल वतनी पर भी बहुत खूबसूरत अशार कहे हैं। मुलाहिज़ा करें, दौड़ता मेरी रग रग में लहू की सूरत, सरफरोशी का ये जज्बा इसी खाक से है। हिफाजत मुल्क की करता है अंतिम सांस तक अपनी, मगर पीछे बिलखता एक रिश्ता छोड़ जाता है। डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा स्वरूप शर्मा साहब ज़बान व अदब का ज़ौक़ रखते हैं जो इनसे शेर कहलवा रहा है। इनकी शायरी कैसी है, अहले ज़ौक़ के नज़दीक इसके क्या असरात होंगे, इसका फ़ैसला कारी पर छोड़ देते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इनकी शायरी में जज्बात और महसूसात के पहलू नुमाया तौर पर नज़र आते हैं और मुझे पूरा यकीन है लब्बैक को आने वाले वक्तों में अहले अदब और अहले ज़ौक़ के हाथों भरपूर पज़ीराई हासिल होगी। मैं लब्बैक का इस्तकबाल करता हूँ और आखिर में माहनामा उर्दू आंगन के मुदीर इम्तियाज़ गोरखपुरी, मुशीर अंसारी और रियाज़ मुंसिफ़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया।